यूक्रेन मुद्दे पर यूएन की सुरक्षा परिषद में अमेरिका और रूस के बीच तीखी बहस देखने को मिली। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि रूस यूक्रेन पर हमला करने के लिए फॉल्स फ्लैग अटैक्स का इस्तेमाल कर सकता है। रूसी राजदूत ने हालांकि किसी भी सैनिक को तैनात किए जाने से साफ तौर पर इनकार किया है। अमेरिका के दावों को खारिज करते हुए रूस ने जोर देकर कहा कि उसकी हमला करने की कोई भी योजना नहीं है, लेकिन लंबे समय से यूक्रेन को अपना प्रभाव क्षेत्र और नेटो के पूर्व की ओर विस्तार को अस्तित्व के लिए खतरा माना गया है। Russia plans to manufacture a pretext for its attack. This could be a violent event that Russia will blame on Ukraine, or an outrageous accusation that Russia will level against the Ukrainian government. We don't know exactly the form it will take. It could be a fabricated so-called terrorist bombing inside Russia, the invented discovery of a mass grave, a staged drone strike against civilians, or a fake, even a real attack using chemical weapons. Russia may describe this event as ethnic cleansing or a genocide, making a mockery of a concept that we in this chamber do not take lightly. Мы готовы к диалогу. Повторяю, к серьезному диалогу, а не к имитации диалога. I reiterate that in the event of Russia opting for escalation, Ukraine will defend itself. We welcome all diplomatic and other efforts taken at different levels to prevent the worst-case scenario. We are grateful for support and solidarity with Ukraine so explicitly demonstrated worldwide. We reiterate the need to further explore all political means to ensure the escalation. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर से चेतावनी दी है कि रूस आने वाले कुछ दिनों में यूक्रेन पर हमला कर सकता है। दूसरी ओर रूस लगातार ये कह रहा है कि वो युद्ध नहीं करना चाहता। रूस ने कई जगहों से सैनिकों की वापसी का भी दावा किया है। हालांकि इससे भी तनाव कम नहीं हुआ है, क्योंकि पश्चिमी देश और यूक्रेन खुद रूस पर विश्वास करने से इनकार करते रहे हैं। इस बीच रूसी सरकार ने मॉस्को में अमेरिकी दूतावास से दूसरे सर्वोच्च रैंकिंग वाले अमेरिकी अधिकारी को निष्कासित कर दिया है। What we know here is that the Russian ambassador charged d'affaires to India has made it very clear that it's the positioning of troops is because of the problems that America has created, and the fact that American missiles are in, which are nuclear-tipped missiles or nuclear-capable missiles, are very close to Russia. That's a point that has been made, but the important thing is to sort out the problem. And now there are people who are at work on this. We know that the French president is involved. The German chancellor is involved. Both sides are talking. And it's also important to note what India has said. India has said there has to be talks. There has to be a peaceful solution. There has to be efforts to find a solution through the Normandy format. भारत ने सभी पक्षों के तनाव को कम करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर जोर दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत की कोशिश ऐसा है कि वो एक ऐसा समाधान तलाश करे जिसमें यूक्रेन और रूस सीमा पर पैदा हो रहे तनाव को कम किया जा सके। It is our considered view that the issue can only be resolved through diplomatic dialogue. India's interest is in finding a solution that can provide for immediate de-escalation of tensions, taking into account the legitimate security interests of all countries and aim towards securing long-term peace and stability in the region and beyond. More than 20,000 Indian students and nationals live and study in different parts of Ukraine, including in its border areas. The well-being of Indian nationals is a priority to us. तो आपको बता दें कि लगातार इस पूरे मामले पर पूरी दुनिया से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जहां पर पश्चिमी देश लगातार युद्ध के खतरे की बात कर रहे हैं, वहीं पर भारत भी इस मुद्दे पर अपनी राय तो दे रहा है और साथ ही ये भी कह रहा है कि लगातार जो तनाव है उसको कम करने के उठाए जाने वाले कदमों
पर ही जोर दिया जाना चाहिए। सीधा चलते हैं मारूफ रजा के पास, जो कि स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। मारूफ, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे भारत के स्टैंड के बारे में। लगातार कल हमने देखा किस तरीके से यूएनएससी में भी भारत ने अपना पक्ष तो रखा, मगर एक बार फिर से कोई भी साइड लेने से साफ तौर पर बचता नजर आया। कहीं ना कहीं प्रेशर भी बन रहा है भारत के ऊपर। देखिए, मेरी राय है और कुछ समझने वाले लोगों की भी यही राय है कि जो भारत कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है और कोई जरूरत नहीं है भारत को अपने आप को लपेटे में लेने के लिए कि चाहे वो बिल्कुल ही रूस के साथ मिल जाए या बिल्कुल ही अमेरिका के साथ मिल जाए। एक चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, वो ये है कि अमेरिका को खासकर भारत की बहुत जरूरत है इस समय, जब वो दुनिया में चीन के खिलाफ कुछ देशों की एक ग्रुपिंग बना रहा है, जैसे क्वाड है, और इसलिए अमेरिका चाहता है कि भारत खुलेआम आकर अमेरिका के साथ मिल जाए और रूस की निंदा करे। लेकिन भारत के रिश्ते रूस के साथ बहुत पुराने हैं। रूस ने भारत की बहुत बहुत मदद की है कई ऐसे समय पर जब भारत को बाकी देशों ने, अमेरिका शामिल, भारत को मदद करने से इनकार कर दिया था। 71 की लड़ाई, जिसकी स्वर्ण जयंती अभी अब मनाई गई है, वो एक मिसाल है। और अभी भी जब कारगिल के बाद जब LAC में चाइना ने अंदर घुसपैठ की थी 2 साल पहले, तब भी रक्षा मंत्री रूस गए थे फटाफट हथियार, हवाई जहाज और ये सब चीजें लेने के लिए, चाइना का मुकाबला करने के लिए। वो अमेरिका नहीं गए थे। हालांकि अमेरिका भारत को पिछले कई सालों से बहुत किस्म के हथियार भी भेजते आया है। तो अभी भारत की पॉलिसी हर समय रही है, आजादी के बाद भी, जब भारत एक कमजोर देश था फिजिकली, मिलिटरीली और इकोनॉमिकली, जब भी उसने न्यूट्रल स्टैंड लिया था बहुत एक विषय पर, और जिससे नॉन अलाइन जैसा एक इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था। और अभी तो भारत मजबूत खड़ा हुआ है, उसकी इकोनॉमी तगड़ी है, उसकी सैन्य शक्ति तगड़ी है, उसकी बात पर दुनिया के लोग यकीदा करते हैं और इज्जत करते हैं। तो भारत को कोई जरूरत नहीं है किसी एक का साइड लेने का इस समय। और जो रूस अभी हासिल करना चाह रहा है यूरोप के साथ, वो मेरे हिसाब से शायद हासिल कर भी लेगा, क्योंकि उसकी कहना है कि नेटो के देश रूस के सीमा के नजदीक आके नहीं खड़े हो जाएं हथियारों के साथ। और इसलिए यूक्रेन एक बहुत मजबूत बफर देश है। बफर कंट्री वो होता है जो 2 बड़े देशों के बीच में होता है, जैसे नेपाल भारत और चीन के बीच में। तो इसलिए रूस चाह रहा है कि आपने हमें पहले इसका भरोसा दिलाया था, अब आप ये करके दिखाइए और इसकी गारंटी दीजिए लिखित में। अब नहीं देते हैं वो, तो वो खुद इस सिचुएशन के जिम्मेवार हैं। और खाली ये कहना कि रूस जो है टैंक वगैरह हथियार इकट्ठा कर रहा है, आपको कोई खास रिपोर्ट नहीं आ रही है कि अमेरिका ने कितना इनको हथियार और इन चीजों को दिया है, जिससे रूस का भी एक किस्म से पारा बढ़ रहा है। तो हमें किसी एक देश को उनकी सिक्योरिटी के ऊपर लेक्चर करने की जरूरत नहीं है। और हमारी सिक्योरिटी जो चीन के साथ अभी जुड़ी हुई है, जहां पे इतने विषय खड़े हैं, उस पे हमें अमेरिका को कहना चाहिए कि आप हमारी भी मदद कीजिए आके और चीन को खदेड़ के वहां से हटाइए। वो करने को तैयार नहीं, वो खाली कह रहे हैं कि साहब आप हमसे मिल जाइए तो हम फिर कुछ करेंगे। तो इसलिए मैं जो अमेरिकी ऐलान है उस पर थोड़ा शक करता हूं। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ मारूफ, एक बात और भी है जिस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है कि लगातार जहां एक तरफ अमेरिका से लेकर सभी पश्चिमी देश इस पूरे मामले पर अपनी टिप्पणी कर रहे हैं, अपनी राय जाहिर कर रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं हर देश ये भी दोहरा रहा है कि इस पूरे मामले को डिप्लोमेटिकली हैंडल करने की ज़रूरत है। भारत की भी यही राय है। आपको लगता है कि ये गुंजाइश अभी भी बाकी है? जरूर वो बाकी है। और जब डिप्लोमेसी बिल्कुल फेल हो जाती है तब लड़ाई शुरू होती है। तो अगर आपको लड़ाई दूर रखना है अपनी सीमाओं से, तो आप डिप्लोमेटिक रास्ते इख्तियार करें। लेकिन ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल
झुक जाएं दूसरे आदमी के सामने और बोलें कि साहब हम आपको कुछ भी देने को तैयार हैं, जैसे भारत और चीन के साथ है एलएसी के ऊपर, कि जो जमीन आप क्लेम कर रहे हो ले लीजिए और फिर बात खत्म हो जाएगी। देखिए, इन सब चीजों के अंदर दो चीजें हैं, आपको प्रॉब्लम को थोड़ा समझना चाहिए और इसको गहराई में जाके जब आप समझोगे तो हर एक का एक एक लक्ष्य होता है, हर एक देश का। और दूसरी चीज ये है कि जब आप कुछ भी हासिल करना चाहोगे, आपको कुछ देना पड़ेगा, तब आपको कुछ मिलेगा। ये नहीं कि सब आपकी मांगे पूरी होगी। तो इसलिए अगर आप डिप्लोमेसी भी यूरोपियन देश कहना चाहते हैं कि हम करेंगे, तो उनको ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि कुछ हद तक उनको देना पड़ेगा, तब कुछ हद तक रशिया पीछे हटेगा। जी, मारूफ, शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।